very good afternoon all. सबको शांत करा दो एटलीस्ट। My dear friends, we have been here and witnessing the event since 11 I think. Before I talk about the program and I take you to the point I want you to be, I would like to thank you all for your overwhelming support to AIL Balrampur. As an authority, I have a lot to share with you all. As I can find the title of today's event, Americans Got Talent, right? Expo. And according to that, this program went on, and many more programs in different set of manners we have been witnessing since the beginning. We found some dance programs, we found some singings, some of the speeches, and those really put us at the relish moment and point. But my dear friends, I'm just wishing to take you to different corner. Actually, you people need to know why we have gathered here. Without an ambition, without the conclusion, the bottom line, any event is not justified. So I want you all to know the actual value of today's program. Why we have gathered here? We means me and Nishant sir. We were invited by Ranjan sir. So please come. We are going to organize an event. So we had also vision what we are going to see. We were not here to just appreciate the program of dance, to appreciate the program of singing. We have been doing this since last 20 years. Even everyone we find such opportunities to witness such type of events. My dear friends, first I want you all to know what is American Institute. Most of you may consider this institute organization as a coaching center, right? But I do be telling you, this is not just an speaking, coaching. You need to understand the value. You need to understand the, facilities. You need to understand the utilization in your coming future. A guy, he was explaining the right value of education. Most of us understand that education is for living the life. Ultimately, when you will be standing at a position at the age of 50, you will be definitely valuing this particular word. Education is not for living. Education is itself a life. मैं कुछ गार्जियंस बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा इन्होंने जितना ओवरवेलमिंग सपोर्ट दिया हुआ है बिगिनिंग से ही, इनको भी बातें समझ में आए. हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट में एजुकेशन को सिर्फ जिंदगी जीने का माध्यम नहीं समझते. हमारा जो एक मोटो होता है वो ये होता है कि हम सब समझें कि एजुकेशन ही जिंदगी. आप सोचिए, एक लड़का बोल रहा था, ही वाज टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, द विमेन कंडीशन इन इंडिया. उसने बताया कि उसके एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इवन एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. वहाँ पर वुमेन को आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पाते. मतलब एक चीज़ समझिएगा इस बात को आप, वहाँ से उसने उस चीज़ को फील किया, लाके यहाँ डिलीवर कर रहा है. दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशन एक्चुअली हमको लाइफ देता है, ना कि जिंदगी बनाना, जिसको आप लोग अपना करियर बनाना समझते हैं, उसका एक माध्यम मात्र होता है. सो वी people from American Institute don't want you to learn English language only from us. We want you to learn the art of living the life. हम अपने अमेरिकन इंस्टीट्यूट के कैंपस में पूरी कोशिश करते हैं कि आपको इस तरीके का माहौल दे सके, इस तरीके की दुनिया को समझने का मौका दे सके कि आप लोग अपने जिंदगी को जीने का मतलब समझिए. एक एग्जाम्पल है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल. इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, थोड़ा सा मतलब समझिएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ. प्रॉब्लम कहाँ से आती है? वी कैलकुलेट आवरसेल्व्स इन आवर सोसाइटी फर्स्ट इनिशियली. आफ्टरवर्ड्स वी गो अ बिट अहेड, वी फाइट सम चैलेंजेस और कंपटीशन. उसके बाद हम थोड़ा आसपास के 2-4 रिलेटिव्स में अपने मिलते हैं, उनसे अपने चैलेंजेस बनाते हैं.
अपना कंपटीटर उनको क्रिएट करते हैं, उन्हीं को compete करते करते हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बीत जाता है। हमको लगता है कि हम अपने इस एरिया में एक सर्कल में सबसे अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मीन्स वी आर गोइंग टू लिव द लाइफ, हम अपनी लाइफ जी चुके। वो जो एक कविता होती थी हम लोगों के बचपन में, जब तक था इतना अंडे में लगता इतना संसार, ऐसे करके कुछ बोल थे उसके। तो अभी क्या है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका दायरा क्या है, आपका अप्रोच क्या, आपकी पहुंच क्या। ये तो आप सब समझते हो कि जितनी बड़ी जिसकी पहुंच होती है उसका आगे बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा नजर आते हैं। हमारी पहुंच अगर इतने में है तो हम कभी कोशिश नहीं कर सकते कि इससे बाहर भी हम उछल कूद के जा सकते हैं। तो हमें अपना दायरा सेट करने की जरूरत होती है। आप सोचिए वर्ल्ड इतना बड़ा है, इफ यू मे हैव सीन द ग्लोब, तो ग्लोब में आप देखते होंगे कितना बड़ा वर्ल्ड ऐसे दिखाई पड़ता है। ग्लोब आप लोगों ने देखा है ना लाइफ में, उसमें आप लोगों को इंडिया दिखता है। इतने बड़े ग्लोब में कितना बड़ा इंडिया दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा, वेरी गुड। उसमें उत्तर प्रदेश दिखता है? कभी ग्लोब में उत्तर प्रदेश आप लोगों ने देखा है? ग्लोब में उत्तर प्रदेश दिखता है? चलो आप लोगों ने अपनी थर्ड आई से देख लिया, मैंने माना कुछ स्पेशल पावर आप लोगों के पास। और उसमें बलरामपुर। अब आप अपने आप को एनालाइज करिए, वेयर यू स्टैंड। आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि आप किस रीच में हो, आपका दायरा क्या है। अब दायरे का मतलब मैं आपका ये नहीं बता रहा हूं आप बात किससे कर रहे हो, मैं आपकी अप्रोच का मतलब कि आपकी समझ कहां तक विकसित हुई है। यू हैव योर कंपटीशन लेवल इन द सर्कल, इन द रेडियस ऑफ बलरामपुर ओनली, या आप थोड़ा ऊपर की सोचते अपने स्टेट लेवल की सोच को डेवलप कर पाए हैं, या आप अपने इंडिया लेवल की सोच को डेवलप कर पाए, या इंटरनेशनली कंपीट करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इंटरनेशनली कंपीट करने के लिए तैयार हैं तो एक बात आप लोगों को समझनी चाहिए। एक वर्ड होता है एल्गोरिदम। अभी एक लड़का सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत बोला था, एल्गोरिदम कितने लोगों ने सुना है इस वर्ड को? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम? बहुत फेमस चीज है। कितने लोग फेसबुक चलाते हो? कितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल यूज करते हो? मेटा बेस्ड कोई यूज करते हो? अभी एक सर ने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि आज हम जो सोचते हैं थोड़ी देर रीड करके हमारे पेजेस पे, मीडिया, सोशल मीडिया के पेजेस पे उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स, उसी से रिलेटेड बातें आनी शुरू हो जाती। यही 4 बार बैठे हो, एसी 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 करो, 8-10 एसी के ऐड आपके फेसबुक पे भी थोड़ी देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। 1 घंटे बाद आप देखोगे पता नहीं कहां से फेसबुक हमको इसको सजेस्ट करना शुरू कर दिया। ये एल्गोरिदम का प्रोसेस होता है। आप लोग डालिएगा जाके आज गूगल पे एल्गोरिदम क्या होता है। मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, 10 साल बाद आपसे कोई बोला, 10 साल पहले आपसे कोई बोला होता कि आप यहाँ बैठ के अमेरिका वाले को देख देख के बात करोगे, सर हम आप मानते हैं इस चीज को? या मैं आपको यहाँ बैठ के बोलूं कि आज हाथ में मोबाइल लेकर बात कर रहे हो, 20 साल बाद क्या होगा कि आपके दिमाग में एक चिप लगा दी जाएगी और आप ऐसे सोचोगे अमेरिका वाले से बात होने लगी, मेरे ऊपर हंसोगे, पागलों जैसी बात कर रहा है। ऐसी ही बातें ये भी लगती थी हमारे पूर्वजों के समय में। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, भारत उदय के सपने हैं। कल 12 जनवरी है और स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे पड़ता है, द रियल यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया, और मेरी नजर में तो यूथ आइकॉन ऑफ द प्लैनेट। आप सोचिएगा 39 इयर्स में बच्चे ने बहुत अच्छा बताया क्या क्या उन्होंने कर दिया था, तो उनसे अगर आप इंस्पिरेशन लेना शुरू कर दोगे तो नगड़े पाओगे अपने आप को। तो कल उनका बर्थडे आ रहा है, यूथ के लिए उससे बड़ा उदाहरण नहीं होता। और यूथ वही होता है जिसके अप्रोचेस अपकमिंग होते हैं। यूथ अपने आप को वो कंसीडर करता है, यूथ मतलब नहीं कि आप यू आर लिविंग इन योर टीन एज, आप 19 साल के अंदर हो तो आप युवा हो गए, नहीं। यूथ का मतलब होता है जिसके अंदर अपकमिंग अप्रोचेस होते हैं। अपकमिंग मतलब होते हैं होनहार, मतलब आगे बढ़ने को लेकर वो कितनी दूर तक सोच ले जाते हैं, वो यूथ होता है। सो आई वांट यू ऑल फर्स्ट टू कंसीडर योरसेल्फ अ यूथ। आपको सबसे पहले अपने आप को यूथ कंसीडर करना जब आप अपना अप्रोच बढ़ा लेते हो। I was talking about the vision of American Institute. It is not mentioned, you may have seen in your institute, in the campus, that is boldly written on the wall, our mission is your success. हमारा जो मिशन होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट का, इट्स ऑल अबाउट योर सक्सेस। आप जरा सोचिएगा, आपसे फीस 4000 अराउंड चार्ज की जाती है, उसके बाद आपका टीचर आपको जबरदस्ती बुलाता है। Except American Institute, you may have gone through many schools, many coachings, many institutions, tuitions. किसी टीचर ने आपसे कितना रिक्वेस्ट किया होगा जितना रंजन सर करते हैं कि आओ पढ़ो आओ पढ़ो आओ पढ़ो, बिना फीस, एक बार फीस देते हो
वो 6 महीने बाद भी आपसे कहते हो यार पढ़ लो, क्या कर रहे हो। सो ये हमारा एक तरीके का सिस्टम डीएनए है, टीचर्स का सिस्टम डीएनए होता है कि हम अपनी सक्सेस को स्टूडेंट्स की सक्सेस में तलाशना चाहते हैं, और ये तब पॉसिबल हो पाता है जब हमारा पूरा का पूरा कॉपरेशन हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर और हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर 100% इम्प्लीमेंट हो पाता है। सो आई वांट दीज इम्प्लीमेंटेशंस टू अकर 100%, और हम कुछ ऐसा कर पाए, आपके साथ शेयर कर पाए। दैट्स व्हाट ये इनिशिएटिव लिया गया कि बलरामपुर में भी इस तरीके का एक प्रोग्राम एटलीस्ट शुरू किया जाए। इट इज द फर्स्ट एवर प्रोग्राम इन बलरामपुर, राइट? वी आर विटनेसिंग फर्स्ट टाइम हियर। पहली बार हम लोग आए हैं, और ब्रांचेस हैं, मोर देन 700 ब्रांचेस आर देयर अक्रॉस इंडिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट। बहुत टॉप लेवल के आप मिलेंगे। सर ने आप लोगों को बताया, आप सोशल मीडिया पे जाके सर्च करेंगे, चीजों को देखेंगे, यू विल फाइंड। जब हम प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं तो वी गेट सरप्राइज्ड कि छोटी छोटी जगहों पर इतने इतने टैलेंट्स बचे पड़े। भी एक छोटा सा बच्चा क्या डांस कर रहा था यार, आई वाज इवन नॉट एक्सपेक्टिंग दैट से बिजली इतनी तेजी, इतनी ज्यादा क्विकनेस थी उस बंदे के, उसके मूव्स देखने के बाद आई रियली गॉट सरप्राइज्ड। सोचो आप किस गाने को कहां से ढूंढ कर लेकर आया, छोटी जगह पे बैठा था और उसके अंदर ये चीजें आ गई। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। सो फर्स्ट वी बिलीव इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट। अब आप लोग आंख बंद करिएगा आज शाम को अपने घर जाके और सोचिएगा आज के 5-10 साल बाद आपके पास एक अच्छी इंग्लिश है तो आपकी लाइफ किस कॉन्फिडेंस लेवल में होगी, और आपके पास इंग्लिश नहीं है तो किस कॉन्फिडेंस लेवल पे होगी। 100% आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो यू डोंट हैव राइट टू लिव, आप अपने अधिकारों से भी वंचित रह जाएंगे। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और in a democratic country we are unaware of our rights just because of one thing, that we cannot stand boldly before anyone। और boldly हम क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं? बाकी subjects they give us knowledge, but English language is a language जो हमको बाकी को कंट्रोल करने का कॉन्फिडेंस देती है। तो English is not just a medium to transfer your thoughts। Most of the people they understand कि हम कुछ भी बोल दें, सामने वाले को समझा ले जाए तो अंग्रेजी काम हो गया। तो ऐसे तो आप इशारे से भी समझा सकते हो, बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, अंग्रेजी की ताकत को समझिएगा। भाषा सबसे बड़ी ताकत होती है। हिटलर का नाम सुना आप लोगों ने? कैसा था मैं नहीं पूछूंगा आप लोगों से, वो तो अपना अपना परसेप्शन है। आप लोग समझिएगा 5 फीट हाइट का बंदा पूरे विश्व को रुला के रख दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मालूम है ना? इतना बड़ा था, उसके पास कौन सी पावर थी? वो किसी से लड़ाई करने, बंदूक मारने थोड़ी ना गया था, वो जानकार कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना था। उसके पास सबसे बड़ी ताकत थी, और उसके पास वो कौन सी ताकत थी कि वो जब बोलता था सामने वाले सुनने के लिए बाध्य हो जाते थे। रैली जो आज जगह जगह नेताओं की आप लोग देखते हैं, ये पहली बार इसकी शुरुआत हिटलर ने ही की थी। जनरल नॉलेज के लिए आप लोग समझ जाइए। तो सोचो एक छोटा सा बंदा एक अपने जनरल रोमेल को लेकर पूरे विश्व में तबाही मचा दिया था जस्ट विद द पावर ऑफ वर्ड्स। तो जो आपके वर्ड्स होते हैं दोज आर द बिगेस्ट वेपन, वो आपके न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। जो वर्ड सस्टेन होता है वो बैलेंस के हिसाब से चलता है। द अर्थ बैलेंस इटसेल्फ, पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करती है, हर चीज में बैलेंस की जरूरत होती है। और इस बैलेंस में अगर आप लोग देखोगे तो इस पूरे वर्ड को बैलेंस सिर्फ एक चीज से नहीं किया जा सकता कि वो फिजिकल पावर हो, और भी पार्ट्स होती हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा एरिया आपका जो होता है वो होता है वर्ड का पावर, कि आपके पास वर्ड किस लेवल के होते हैं, बातें किस लेवल की आप लोग करते हैं। नाउ वी पीपल फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट वी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर थ्रू विच यू कैन डेवलप कन्विंसिंग स्किल। हम बोलते तो हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था आशुतोष राणा, वो अपना इंटरव्यू किसी को कर रहे थे। आशुतोष राणा को जानते हो? बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर आशुतोष राणा। आप लोग तो जानते ही होंगे ना, अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जान रहे हो ना? उन्होंने एक लाइन बोली थी कि हम बोलना तो 2 साल में सीख जाते हैं, लेकिन बोलना कैसे है इसके लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। तो आपके अंदर जब तक अपनी बातों को एम्फेटिक रूप से रखना नहीं आएगा, कन्विंसिंग नहीं आप सीखोगे, तब तक आपकी लैंग्वेज को वो ग्लो नहीं मिलने वाला जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। हम हिंदी बोलते हैं ना? क्या सारे लोग एक ही जैसी हिंदी बोलते हैं? जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम हमारे भाषा की जो
एक शालीनता होती है, उसमें कई चीजें जब जुड़ती हैं, देन दैट कैच इट्स एक्यूरेट लिसनिंग। और वो एक्यूरेसी तब आती है जब इंटोनेशन ऑफ द वर्ड्स शुड बी अप टू द मार्क, योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी अप टू द मार्क, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर अप्स एंड डाउन्स means you should not forget that there is a word of difference between a speed and a fluency. Speed means what? You are going to cross the breakers and commas, full stop, everything. But when you mention your exclamations, your commas, your full stops, and you give yourself time to speak out. आपने बैटिंग देखी होगी, everything has a flow. हर एक चीज के अंदर एक फ्लो की जरूरत होती है। एक बैट्समैन बैटिंग करने आता है, क्रिकेट सबसे ज्यादा फेमस है तो उसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जब वो फ्लो में खेल रहा होता है तो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। मैच जब अपने फ्लो में होता है, पीक पर होता है, तो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो हर एक चीज में फ्लो की जरूरत होती है। आपके लैंग्वेज में एक बैलेंसिव फ्लो की जरूरत होती है। जब वो फ्लो अपने अल्टीमेट लेवल पे होता है तो लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। वंस यू आर अप्रिशिएटेड, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू लिव द लाइफ। एक बार अगर आपका अप्रिशिएशन शुरू हो गया, तब आप There are some thrust, पढ़े होंगे आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर होता है थ्रस्ट का। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, जब पानी में कूदो, नीचे से एक फोर्स मार के फिर से ऊपर फेंक। पानी में कभी कूदे हो आप लोग? नहर, तालाब, स्विमिंग पूल कभी कूदे हो? जब कूदो तो नीचे से क्या होता है, फिर से एक फोर्स मारता है, आप ऊपर आ जाते हो, तो उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। तो लाइफ में भी हमको एक थ्रस्ट की जरूरत होती है। हम करते तो बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन एक लंबी छलांग की जरूरत है। जब तक वो लंबी छलांग आप नहीं मार दोगे, कुछ ऐसा नहीं कर दोगे एक बार लाइफ में कि आप 100 के बीच में एक नजर आओगे, तब तक आपको कुछ करने के लिए इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है, संदीप माहेश्वरी और फलाने धमाके देश भर के यूट्यूबर्स को सुन सुन के आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी? वो अपनी ना बदल पाए तभी तो यूट्यूबर बनेंगे। अगर वो अपनी बदल नहीं होते तो यूट्यूबर काहे बने होते? तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप सब यहाँ आए हो आज तो प्लानिंग किए होंगे आप लोग। कितने लोग प्लानिंग के साथ मतलब आए कि मेरे को पार्टी में जाना है, ये पहनना है, ऐसे दिखना है? झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने टीचर से, बिल्कुल भी। ईमानदारी से बताइए कितने लोग मतलब प्लान किए थे अच्छे से तैयार व्यार होना है? मैंने नहीं किया, झूठ नहीं बोलूंगा। इतनी पार्टीज होती है आजकल, कम वक्त कपड़े बदलते बदलते जबरदस्ती येलो कलर का कपड़ा पहनना पड़ा है। लाइफ में पहली बार मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले को ये सब कपड़ा पहनना बड़ा बुरी बात होती है, लेकिन पहनना पड़ता है। तो सभी लोग प्लान करते हो, फिर आप सोचते हो आउटर अपीयरेंस इसको बोलते हैं, कि मैं जाऊंगा तो मैं चलूंगा ऐसे, मैं ऐसे खड़ा हूंगा, फिर मैं जितने लोग मैम लोग मतलब कितना तैयारी की होगी, ऐसे बोलूंगी, इस तरह बोलूंगी कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। मैम किया होगा, खूब सारे रिहर्सल्स भी किए होंगे। आप मुझे बताइए सिर्फ यही ब्यूटी मायने रखती है? शीशे के सामने आप गए होगे, जब लगा होगा हाँ अब ठीक है, तब आप निकल के बाहर आए होंगे। तो आप जब तक कॉन्फिडेंस मोड में अपने कॉन्फिडेंस को पा नहीं लेते हो किसी चीज के प्रति, तब तक आप लोग बाहर निकलते हो। आउटर अपीयरेंस का इतना ध्यान है। अब आप जरा सोचिएगा कि आप इनर अपीयरेंस के बारे में कितना सोचते हो। मैं चलता हूं तो कैसा लगता हूं, मैं बोलता हूं तो मेरे बोलने पर लोगों का जो ध्यान होता है वो कितना मेरी तरफ आता है, मेरी बातों को कितना ज्यादा कंसीडर किया जाता है, मेरे से जो वर्ड्स निकलते हैं वो कितने काम के होते हैं और कितने बेकार के होते हैं। कभी माइंड करते हो ये सब? आप ये सारे अपीयरेंस तो इतना ध्यान दे देते हो कि मतलब वो तो माशाल्लाह ठीक ही होता है आप लोगों का, लेकिन इस पे कब ध्यान दोगे आप लोग जो एक्चुअल आप लोगों की पर्सनालिटी की रिकॉग्निशन होती है? आपकी पहचान कभी, मेरी क्या पहचान बनाओगे आप लोग? चंदन सर आए थे पीला पीला कपड़ा पहन के, मैं यहाँ से जाऊंगा 1 साल बाद मेरे बारे में बात करो, वो एक आए थे पीला 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 कपड़ा पहन के चश्मा लगा के आए थे, कभी ऐसे बोलोगे आप? मेरी ये पहचान कभी नहीं बनने वाली है। तो पहचान आपकी जो एक्चुअल होती है उस नहीं, इस पे ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब इसका कॉम्बिनेशन आपके इनर सोल से आके मिलता है तब एक्चुअल आप लोगों की पर्सनालिटी जस्टिफाइड होती है, तभी आप लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड समझ में आता है। लिविंग स्टैंडर्ड इज नॉट कि मैं फ्लैट में रह रहा हूँ, बड़ी अच्छी कॉलोनी है, वहां पार्क मिलता है, वहां दौड़ने का मिलता है, लाइफ स्टाइल बड़ी। लाइफ स्टाइल एंड लिविंग स्टैंडर्ड में बड़ा डिफरेंस होता है।
स्टैंडर्ड फुल लाइफ क्या होती है, हम क्या जीते हैं, वो देखो पड़ोसी वो ये पहन के गया, उनको देखो रोज सुबह उठते हैं ऐसे करके निकल जाते हैं। एक मेजोरिटी हमारे समाज में ये भी होती है, और एक मेजोरिटी क्या होती है कि हम बैठते हैं और बताओ यार आजकल क्या चल रहा है, इंडिया की डेमोक्रेसी कहाँ वर्क कर रही है, अपने को बताओ। अभी नई चीजें जो हो रही हैं, अभी सोलर सिस्टम के ऊपर इतना वर्क कर रहे हैं, तो सोलर सिस्टम जाके कहाँ रुकेगा, नई व्हीकल्स आ रही हैं, उन व्हीकल्स में ये लोग इलेक्ट्रिक मोड ज्यादा लेकर आ रहे हैं, डीजल की गाड़ियां ज्यादातर कंपनीज ने बंद क्यों कर दी हैं, क्या ऐसा करने वाले हैं, उससे क्या बूस्ट होगा, क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। कभी हम युवा बैठ के इस पे बात करें तो बात करें, तो हम युवा ये सब करने के लिए बने हैं कि क्या करने से क्या होता है। जब हम इस लेवल की बात करते हैं तब हम उम्मीद कर सकते हैं वी कैन मेक द एटमॉस्फेयर ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट एट इट्स बेस्ट, वी कैन मेक द एटमॉस्फेयर ऑफ बलरामपुर एट इट्स बेस्ट, we can make atmosphere of our society at its best and ultimately we can put our country at its best। जब आपके युवा इस सब लेवल की तरफ, इन सब सोच की तरफ, इस अप्रोच को, मैंने शुरुआत यहीं से की थी, जब इस अप्रोच को पकड़ लेंगे, अपनी पहुंच को बढ़ा देंगे इन चीजों तक, घुस जाएंगे पूरी तरीके से कि क्या कैसे हो रहा है, उस दिन से आप नए इंडिया का सपना और नए अमेरिकन इंस्टीट्यूट का सपना पूरा कर सकते हैं। एंड वी पीपल फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट इसी विजन के साथ अमेरिकन इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इट हैज बीन स्प्रेड ओवर मोर देन 14 स्टेट्स, 14 राज्यों से ज्यादा हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट एनक्लोज कर चुका है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई भी राज्य छूटे ना। साउथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि साउथ की लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ेगी, लेकिन उसके ऊपर भी वर्क कर चल रहा है। जल्द से जल्द हमारी रीच वहां तक होगी और हम पूरी तरीके से डिटरमाइंड है, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, डिसिप्लिन्ड है कि इन सारे माध्यमों से हम अपने युवाओं को उनके बेस्ट तक पहुंचाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। वन मोर थिंग, काफी कुछ मिसाल सर ने आप लोगों को बता दिया था, और यू पीपल आर वेरी लकी रियली टू हैव अ टीचर लाइक रंजन सर। रंजन सर अपने आप में रंजन सर नहीं है, ये एक बुक है, अगर इनको आप लोग पढ़ने बैठ जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इनके अंदर इतने कोण हैं कि उन कोणों से जिगजैग होते हुए हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, तो आप लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि एक धारा के साथ तो इनसे आप लोग जुड़ के बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जस्ट यू नीड टू एनालाइज द लेवल ऑफ योर टीचर, यू नो ही इज इनका डेडिकेशन। जब मैं देखता हूँ रात को 12 बजे इनको, रात को 8 बजे मऊ में प्रोग्राम करा रहे हैं और अगले दिन सुबह 7 बजे बलरामपुर में आके क्लास ले रहे हैं। इट्स नॉट एन इजी टास्क यार, आफ्टर ही इज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती, कहाँ से इतनी पावर आती है, कहाँ से इतना सब कुछ कर पाते हो। जब पूछो तो एक ही वर्ड निकलता है, सर डेडिकेशन से बड़ा कुछ नहीं होता। आपके दिमाग में जब डेडिकेशन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक्सक्यूजेस आर जस्ट एक्सक्यूजेस। अगर आपको जिंदगी बनानी है तो बहाने बनाना छोड़ दीजिए, और बहाना बनाना है तो जिंदगी बनाने का सपना छोड़ दीजिए। या तो बहाने नहीं या तो जिंदगी है। अच्छा, with some words I would like to wind up my tongue. Everybody is running after success. अभी किसी से पूछो सक्सेस पानी है, सक्सेस पानी है, सक्सेस पानी। व्हाट इज सक्सेस? ये कमबख्त वर्ड है क्या? सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। कोई बोलता है सक्सेस का मतलब एक कदम आओ, हासिल कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। फिर सक्सेस का मतलब बड़ा मतलब रेस। रेस कैन नेवर बी द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, यू नो। कभी रैट्स रेस हो या कोई भी रेस हो, वो सक्सेस की डेफिनेशन नहीं हो सकती। somebody has become an IAS officer, he is successful? No, not necessary. somebody is Ambani, he is successful? No, not necessary. किसी की और डेफिनेशन होती है। कोई बोलता है कि आपके पास जो आपने सोचा वो हासिल कर लिया तो पैसा, तो किसने कौन सी चीज हासिल कर ली? कोई सेटिस्फाइड है क्या? फिर कोई बोले कि सक्सेस जैसा कोई वर्ड नहीं होता। नहीं, सबकी अपनी डेफिनेशन है, हमारी अपनी डेफिनेशन है। हम वो डेफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कोशिश करिएगा, अमल करिएगा। हैप्पीनेस से बढ़कर कुछ नहीं होती है। वो कैसे आती है? यू मस्ट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, यू मस्ट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यू नो पावर एंड ऑल। वो होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमेशा याद, आई टेक यू बैक, यू नो इनिशियली अमेरिकन में एक और विंग स्टार्ट की गई थी, इंटरनेशनल मॉन्टेसरी अमेरिकन किड्स के नाम से। कुछ दिन पहले सर हम लोगों के यहाँ जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज चलता है, ऐसे ही इसका एक और स्कूल खोला जाने का प्लान बना था कि छोटे छोटे बच्चों का जो किड्स होते हैं
फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचने के पहले, मतलब नर्सरी बेस्ड स्कूल हमारे ओपन किए गए, तो उसमें इंटरनेशनल मॉन्टेसरी में जो ट्रेनर आई हुई थी वो ट्रेनिंग दे रही थी, और मैं ध्यान से बैठ के सुन रहा था। बड़ी अच्छी बात मेरे को सीखने को मिली। उन्होंने बताया कि मतलब किसी भी बच्चे में कुछ डेवलपमेंट्स की आवश्यकता होती है, कुछ विकास की। आप लोग भी गार्जियन होंगे, इसमें अपने बच्चे में कुछ विकास देखना चाहते होंगे, या आप नई गार्जियन होंगे, आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट्स देखना चाहते होंगे। मोस्टली हम देखते हैं, चाहे स्कूल्स हो, टीचर्स हो, माँ बाप हो, वो अपने बच्चे में सबसे ज्यादा किस पे फोकस करते हैं कि उसका माइंड डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। फिर थोड़ा सा और जागरूक अवेयर लोग होते हैं, वो सोचते हैं हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो, मतलब शारीरिक विकास पर भी बहुत ध्यान देते हो। बोलते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड नॉलेज करके हमारे भी पेरेंट्स ने उनको खूब सिखाया। फिर कुछ और लोग होते हैं वो ध्यान देते नहीं बेटा इतना ही नहीं होता, सोशल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, सामाजिक विकास, समाज में कैसे है, समाज के प्रति भी आपका दायित्व होता है। अगर समाज वैल्यू नहीं रखता तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। और आप लोग यकीन मानिए सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सोशियोलॉजी सबसे फेमस सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है, और सबसे आसान जान के लोग ग्रेजुएशन में सेलेक्ट करते हैं इसको, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट होता है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई फोकस नहीं करता है, और वो जानते हो क्या है? भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। You know, youths of India are getting emotionally weak. नंबर कम आते हैं, कमरा बंद करके रोने लगते हैं, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया सुसाइड कर लेते हैं, नस काट लेते हैं, झगड़ा हो गया मियाँ बीवी में तो पता नहीं क्या क्या मतलब आदमी करने को आमादा हो जाता है। ये जानते हो कौन से लोग करते हैं? जिनका मेंटल स्टेटस बैलेंस्ड नहीं होता, दे आर इमोशनली वीक। वो भावनात्मक रूप से वीक होते हैं, उनको बचपन से इस चीज की ट्रेनिंग नहीं दी गई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर इमोशनल डेवलपमेंट एज वेल। आपके भावनात्मक विकास का भी मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। अब इन चारों बातों का आपके सक्सेस से लेना देना है। क्या लेना देना है? हमारे पास वेल्थ तो होनी चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, हम उसके लिए तो दौड़ लगाते ही लगाते हैं, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए हमारे पास कि हम उसमें से कुछ हिस्सा अपने समाज के लिए भी कर सके। हम कितने भी आगे बढ़ गए, अगर हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। हम जिएंगे, आएंगे, हम में और जानवरों में सिर्फ इतना फर्क रह जाएगा, जैसे वो अपनी लाइफ जीते वैसे हम भी जी के चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो हम ह्यूमंस सर्वश्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि हम औरों के बारे में भी सोचना जानते हैं। हम बहुत सारा पैसा कमा लें, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए, और मेरे से कोई बोले लो 2 समोसा खाओ, कह दूं नहीं डायबिटीज नहीं खा सकता, मैं सक्सेसफुल हूं? बोलो भाई। मैं आया आप लोगों के घर पे, आपने मुझे कहा सर चाय पीजिए, मैं कहूं नहीं मुझे शुगर है। अब मेरे को क्या सक्सेसफुल कंसीडर करोगे? आपके पास प्रॉपर हेल्थ भी होनी चाहिए। हेल्थ इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ढेर सारा पैसा कमा लो, ढेर सारा नाम कमा लो, सब कुछ आपके पास हो गया, हेल्थ अच्छी बना के रखे हो, बाइसेप ट्राइसेप सब हंक लग रहे हो, और आपके पास आपके बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो आपकी सक्सेस किस काम? और ये चारों चीजें जब मिलके एक बैलेंस बनाती हैं तो एक बनती है आइडियल लाइफ। और एवरीबॉडी शुड रन आफ्टर एन आइडियल लाइफ। लोगों को आइडियल लाइफ की तरफ भागना चाहिए, ना कि सक्सेस जैसे वर्ड की तरफ भागना चाहिए। सक्सेस के पीछे एक आइडियल लाइफ को भागना चाहिए। You should have proper health, you should have proper money, you should have proper knowledge, and the most important thing, you should have sufficient time for your owns. आपको अपने लोगों के लिए समय भी निकालना चाहिए। टाइम इज आल्सो वेरी वेरी प्रीशियस। बाकी रेस्ट आई हैव अ लॉट टू शेयर विद यू ऑल, बट आई वुड लाइक टू मीट यू इन योर क्लास। With these words, I would like to stop my tongue.